एक मिनट, क्लास रिकॉर्डिंग पे पहली वाली क्लास भी लगा रखी है, देखो कन्वर्ट हो गई कि नहीं फाइल। सर लिंक सेंड कर दीजिएगा जब इसी ग्रुप पर। कौन से ग्रुप में? सर मैं जब आप मैटलैब की बता रहे हैं ना, जब मैट्रिसेस की आप इसी ग्रुप में करेंगे सेंड? हाँ दोनों ग्रुप में कर दूंगा, वो तो बच्चे कॉमन ही होंगे ना मेट्रिक। अच्छा जी सर, ठीक। लिंक सेंड कर। एक्चुअल प्रॉब्लम होती है ना, ये फाइल कन्वर्ट हो जाती है दूसरी उसमें आती है तो फिर पहली वाली वो हो जाती है, 2 मिनट वेट कर लेते। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों को मैंने वो कराया था, ये बताया था कि इफ यू टेक ओपन इंटरवल 0 1 एज स्पेस x इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1 एंड लेट अस इक्विप दिस स्पेस विथ यूजुअल मेट्रिक। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 1 को हम यूजुअल मेट्रिक से अगर इक्विप कर दें, so sequence 1/n is not, sequence 1/n is Cauchy but not convergent। तो आप कैसे शो करोगे कि sequence 1/n Cauchy है लेकिन convergent नहीं है? एक तो मैंने एक आइडिया दे दिया था, लेकिन शो कैसे करेंगे? ठीक है ना, वो पोर्शन करना, क्योंकि अक्सर ये एग्जांपल आप देते हो लेकिन वो कैसे होता है वो चीज हमें, ठीक है, बात समझ आ रही मेरी? क्योंकि आपको बताया था ना कि इन मेट्रिक स्पेस Cauchy सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। उसका ये बड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल है, कॉची सीक्वेंस मेट्रिक की स्पेस में कन्वर्जेंट हो जरूरी नहीं है, तो उसके लिए। ठीक है चलो मैं बाहर देख लेता हूँ। What I am recalling, let me recall all those results which we have studied so far. So there is very good proposition given book of this topology of metric spaces by S. Kumarasan. So in proposition 2.3.6 some results are collected. So let me recall those results. Let XD be a metric space. Then what we have studied so far, that any convergent sequence in metric space is Cauchy. The proof already I have discussed is Cauchy. The converse is not true. Second result, any Cauchy sequence xn in X is bounded. This also we have covered. Any Cauchy sequence xn in X is bounded. That is all xn belongs to some ball for some x belonging to X and r greater than 0. Third, the Cauchy sequence is convergent if and only if it has a convergent subsequence. If and only if it has a convergent subsequence. So this result that in general a Cauchy sequence need not be convergent, but if a Cauchy sequence has at least one convergent subsequence, then Cauchy sequence is going to be convergent.
So proof of first two already we have discussed, and in last class I was discussing the proof of this one. Now my question is that, see, for this I have already discussed several examples. I mean, any convergent sequence in XD is Cauchy. The converse is not true. So for this we have, for converse part we have taken this example, that let me take x equal to open interval 0 1 and equip this space with the usual metric. Then you can then you can see that the sequence xn is equal to 1 by n. This is Cauchy but not convergent in this one. Actually it will converge to 0, but 0 is not in this space. So we will say in general that it is not convergent. But how to discard that it is Cauchy but not convergent? How to discard that it is not convergent? So that proof I am going to discuss here. बताएं आप लोग. चले देखते हैं इसको प्रूफ को. देख, so Cauchy sequence need not be convergent. So the converse is not true. For this, Cauchy sequence need not be convergent. हालांकि मैंने और भी कुछ एग्जांपल आपको दिए थे, लेकिन प्रूफ इसका कैसे करेंगे, कैसे शो करेंगे Cauchy. So let us take x is equal to open interval 0 1 with usual metric, that is the standard metric or usual metric. So we need to show that sequence 1 by n is Cauchy but not convergent. So to show that it is Cauchy, sequence 1 by n is Cauchy. How? For this I need to show that the distance between xn and xm tends to 0 as nm tends to infinity, or you can show that for every epsilon greater than 0 there exists some n naught, such that for all nm greater than, its second interpretation that I mean for every epsilon greater than 0 there exists some n naught such that d of xn xm, I mean given, it should hold for every epsilon, whatever epsilon is given to us. For that n naught may be different, may be same. So for every epsilon greater than 0 there exists n naught such that d of xn xm is less than epsilon for every n m greater than n naught. So these two are the equivalent one representation. So since the usual metric is given by d of xy is equal to mod of x minus y, so from there I can write that d of xn xm will be 1 by n minus 1 by n. आप इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, mod of n minus m upon nm. And you can one can write this as less than equal to n upon nm. लिख सकते हैं कि नहीं भाई? जैसे मान लो 5 minus 3 है, या जो भी इनमें से ज्यादा हो आप उससे रिप्लेस कर दो उसके मैक्सिमम से n और m में से, क्योंकि n minus m, mod of n minus m is always going to be, n and m are natural numbers, so mod of n minus m is always going to be less than equal to n. ये mod of 5 minus 3 जब भी होगा less than equal to 5 होगा, है ना? तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम, उससे सपोज के मैक्सिमम n और m का n है, हमने उससे रिप्लेस कर दिया. और यहाँ से देखो n क्योंकि नेचुरल नंबर है, नॉन जीरो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, so I can write this as 1 by m, and from Archimedean property of R, 1 by m
will be less than epsilon. For this there always exists some n naught such that for all n greater than equal to n naught, for all m greater than equal to m naught, 1 by m is less than epsilon. Is it? ये क्लेम में लिखने की जरूरत तो नहीं है ना. 1 by n या 1 by m को आप लेस देन एप्सिलॉन, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर से हमेशा क्लेम कर लोगे. कई बार मैं करा चुका हूँ. डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पे? हाँ, तो वो जो आपको डेफिनेशन में यहाँ जो आपको चाहिए था वो n नॉट कहाँ से मिल जाएगा? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर से. सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस सीक्वेंस इज कॉची. एक्चुअल मैंने आइडिया तो दे दिया था, लेकिन प्रूफ मैंने मेथड लिख के नहीं दिखाया था. तो इस पॉइंट को डिस्कस करना जरूरी, कैसे आप शो करोगे. ठीक है ना. अब यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब यहाँ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का आप रेफरेंस दे देना कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंगिंग टू n, या चलो कैपिटल n नॉट कर दो, सच दैट 1 by n will be less than epsilon for every n greater than equal to n naught. ठीक है ना. ये जो n naught का क्लेम है, यही n naught की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे. अगर आप वो n naught यहाँ दिखा दो जिसके बाद के सारे nm के लिए ये चीज ट्रू है. So this is already true. 1 by m is less than epsilon for every m greater than equal to n naught. But the sequence is not convergent. But the sequence 1 by n does not converge to any point in 0, 1. ये कैसे शो करोगे आप? पहले कन्वर्जेंस की डेफिनेशन याद करो, रिकॉल करो और वहां से बताओ आप. चलिए देखें. चलिए मैं टाइम देता हूं, पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद आप बताएं. इस तरह की चीजें मैं कई बार आपको करा चुका हूं. आपको ये क्लेम करना है कि ये किसी भी पॉइंट को, ओपन इंटरवल 0, 1 के किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करेगा. तो आप सपोज करो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, तो उस पॉइंट के हर एक नेबरहुड में क्या होना चाहिए? हर एक नेबरहुड के लिए कोई ना कोई n1 मिलना चाहिए, सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 सीक्वेंस के मेंबर उसमें कितने हो? सारे मेंबर हो ना, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू n1 के लिए. तो आप एक ऐसा ओपन सेट कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ जिसमें इसके मेंबर्स छूट जाएं. आई मीन बाहर डेफिनेशन क्या कहता है कि if 1 by n converges to say any x in open interval 0, 1, then in every neighborhood of x, I mean outside every neighborhood of x there lies only finite point of the sequence. तो आप एक ऐसा बनाओ जिसके अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर लाई ना करें. तो अगर आप ऐसा कोई ओपन सेट बता दो तो डिस्कार्ड हो जाएगा. इस वजह से इस प्रूफ को मैं करा रहा हूं कि ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम इसे छोटी छोटी बातें छोड़ देते हैं. अब जैसे आप कहोगे ना कि 1 by n सीक्वेंस कॉशी है, तो कोई पूछेगा कैसे कॉशी है, आप कैसे वो n नॉट क्लेम करोगे? तो उस n नॉट का क्लेम बेसिकली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर से मिलता है. आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर से. आ रहा है समझ में आप लोगों को ये बात? यस, एनीवन? Show that sequence 1 by n will not converge to any x where x belongs to open interval 0, 1. ये आपको शो करना है. तो डेफिनेशन कन्वर्जेंस की क्या कहता है? अगर आप डेफिनेशन रिकॉल करो, we say that sequence xn converges to x if for every epsilon greater than 0 there exists n naught belonging to n such that xn belongs to every ball with center x and radius r for all n
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ये कहता है कि आप जो भी बॉल बनाओ, अच्छा r रेडियस का बॉल है तो आप यहाँ पे फिर r कर दो इसको, वॉट एवर रेडियस बॉल यू चूज with center at x, I mean with center at the limit which we are claiming, within every ball, for every ball there must exist some n naught such that members of the sequence will be in the ball after for all n greater than equal to n naught, means outside n there will be only finite. So to discard that 1 by n will not converge to x, you need to construct a ball around x such that for which there exists no such n naught, for which there exists no such n naught। तो ये आपको करना, अब आप इस पे सोचो, मैंने ये आपको बता दिया। एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी बॉल, हर बॉल के लिए होना चाहिए ना, किसी एक बॉल के लिए भी फेल कर गया तो एक्स एन एक्स को कन्वर्ज नहीं करेगा। देखो इसका कंस्ट्रक्शन का आइडिया क्या होगा, थोड़ा सा पहले आप ज्योमेट्री समझने की कोशिश करो। मान लो ये ऐसे कुछ जूम कर लो कि यहाँ कहीं 0 है और यहाँ कहीं 1 है, ऐसे मान सकते हो। हालांकि बॉल जरूरी नहीं, बॉल की रेडियस बड़ी भी हो सकती है, बट यू नीड टू चूज विद इन दिस स्पेस। इसके स्पेस का इंटरसेक्शन लोगे तो बाहर वाला तो आएगा नहीं वैसे भी, ठीक है। ठीक है, एक्स के अंदर अगर आप कोई भी यहाँ लेते हो तो ऑब्वियस है कि ये कोई रियल नंबर है 0-1 के बीच में, एक्स कोई रियल नंबर 0-1 के बीच में। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर से आप कोई नेचुरल नंबर n क्लेम कर सकते हो, आई मीन नेचुरल नंबर n क्लेम कर सकते हो सच दैट 1/n, आई मीन यहाँ पे 1/n ले लो, 1/n जो इस x से भी छोटा हो, 1/n लेस देन n। वो तो है ना आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ये x को x ग्रेटर देन 0, 0 के राइट में है तो हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव से पहले फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट आप हमेशा वैसा 1/n ढूंढ सकते हो सच दैट 1/n इज लेस देन x। सपोज कि 1/n है, यहाँ पे कहीं ये 1/n है, ये x और 1/n इज लेस देन x, दिस suppose there is 1/n less than x, you can easily do this using Archimedean property of R। Yeah, or you can say that suppose there is a natural number n such that 1/n is less than x, ठीक है। अब अगर आप इस बॉल का रेडियस बनाओ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू से x माइनस 1/n, x माइनस 1/n, क्योंकि x 1/n से बड़ा है तो ये एप्सिलॉन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो एज पर कंस्ट्रक्शन x 1/n के राइट में है तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब इस एप्सिलॉन के लिए आपको ये क्लेम करना है कि क्या 1/n x को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू होना चाहिए। इस बॉल का अगर आप रेडियस बनाओ x के राउंड, उसमें क्या सीक्वेंस का आप इनफाइनाइट मेंबर्स और बाहर सिर्फ फाइनाइट मेंबर्स दिखा सकते हो। So for this value of epsilon, the convergence of 1/n converging to x implies that there exists n naught. Suppose 1/n converges to x for this epsilon, then as per definition there exists some n naught such that for all n greater than equal to n naught, I mean we are claiming the center as x, so the sequence, I mean there lies infinite, I mean for this epsilon, within this epsilon neighborhood there should lie infinite members, I mean for all n greater than equal to n naught. Let me change the color here, I mean for you will always have the type 1/n. If we assume that 1/n converges to x, then for every epsilon there exists some n naught. So for this epsilon, again as per definition, if 1/n converges to this x, then for this epsilon again I have some n naught such that for all n greater than or equal to n naught, the distance of 1/n from x is less than epsilon, x minus 1/n less than epsilon. This is as per our construction, because this distance we have assumed as epsilon, x से कैपिटल 1/n की डिस्टेंस को हमने एप्सिलॉन एज्यूम किया है, ठीक है। कैपिटल
एप्सिलॉन एज्यूम किया है। इफ इट now how you will discard? बताओ, कोई कंट्राडिक्शन ऐसा दिखा सकते हो? आपको ये दिखाना है ना, देखो होगा क्या कि जैसे आप पढ़ते थे कि जब जीरो को हम लिमिट पॉइंट कंसीडर करते थे तो जीरो के हर एक नेबरहुड में आप इधर एप्सिलॉन कुछ भी ले लो, उसके हर एक नेबरहुड में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर से कितने रियल नंबर हो जाते थे। मैं हिंट देता हूँ, जैसे ऐसे लिखो, देखो जब जीरो को हम क्लेम करते थे और यहाँ ये 1 होता था, ये 1/2 होता था, 1/3 होता था, तो हम जीरो के तो हर एक नेबरहुड में आप चाहे कितना भी छोटा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हो, लेकिन 1/2 नहीं होगा इसका लिमिट। क्यों? क्योंकि 1/2 से इसकी डिस्टेंस मेजर करते थे, इसकी मेजर करते थे और ये बॉल बनाते थे। इसमें 1/n के टाइप कोई n नॉट नहीं मिलेगा सच दैट मेंबर्स ऑफ द टाइप 1/n विल लाई विद इन दिस बॉल। ठीक है ना, ये चीज तो सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ रिजेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। उसी तरह कंस्ट्रक्शन कि मान लो कि x से जो नियरेस्ट होगा उसको मेजर करके अगर मैं बॉल बना दूं तो मुझे ये क्लेम करना है कि सीक्वेंस ऐसा कोई नॉट नहीं मिलेगा जिसके बाद सीक्वेंस के सारे मेंबर उस बॉल के अंदर हों। तो मुझे वो एक कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। आप इसे करें, मैं कोई वेट कर रहा है, मैं अभी करता हूं, तब तक आप इस पर सोचें इस पॉइंट पे। हाँ देखिए, ठीक है ना। अब देखो इसको रिजेक्ट, वैसे तो यहाँ से दिख रहा है कि अगर मैं रेडियस इससे छोटा ले लूँ तो क्लियरली 1/2 को होल्ड नहीं करेगा, उसी तरह 1/3 को होल्ड नहीं करेगा। तो आप इसको करके दिखा तो सकते हो। इन जनरल आप x एज्यूम कर लिया। सपोज क्या कि x से राइट में कोई मेंबर है 1/n, है ना, और x और 1/n का डिस्टेंस है एप्सिलॉन। तो इस एप्सिलॉन के लिए अगेन, क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए होल्ड करना चाहिए, तो अगर इस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए भी हम बात करें तो ऐसे सारे n के लिए ये n आई मीन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट 1/n जो होगा वो x और एप्सिलॉन x और 1/n के बीच में ये 1/n मिलना चाहिए एज पर डेफिनेशन। अब क्या होगा कि ये आपको होल्ड कर रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ठीक है, अब इस n नॉट और ये जो आपने n चूज किया है, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा, देखो अगर n इससे बड़ा होगा तो भी होल्ड करेगा, क्योंकि n इस पर्टिकुलर n नॉट इस नेचुरल नंबर के बाद के सारे नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर रहा है। सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट दिस शुड होल्ड। सो हाउ टू रिजेक्ट इट? इफ वन चूज n is equal to, in fact n greater than equal to maximum of 2n and n नॉट। देखो ये लेने से क्या फायदा होगा कि अगर 2n की वैल्यू n नॉट से
देखो 2n की वैल्यू अगर n0 से छोटी है तब तो ये होल्ड कर ही रहा है, इवन 2n की वैल्यू n0 से बड़ी तब भी होल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ये कंडीशन ले रखा है कि इट शुड होल्ड फॉर ऑल सच n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो जब ये लोगे तो यहां से क्या होगा कि आप ये जो x माइनस 1/n की दूरी है ना, ये जो x से स्मॉल n x माइनस 1/n, ये अब जब मैक्सिमम लोगे n जो लोगे इनमें से मैक्सिमम लोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली x माइनस 1/2n से ये बड़ा होगा। क्यों? या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू एग्जैक्टली 2n हुई तो भी उसके लिए भी होल्ड करना चाहिए। तो x माइनस 1/n क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1/2n। और यहाँ डायग्राम से देखो 1/2n जो होगा वो इसके लेफ्ट में होगा, 1/2n जो होगा वो 1/2n, दैट क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, तो 1/2n विल बी लेफ्ट टू 1/n। x माइनस 1/n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1/2, क्योंकि ये जो n है ना, n है, ये n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस, मैक्सिमम ऑफ दिस। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये चीज, ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये इससे छोटी होगी, या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, x माइनस 1/2n। क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी ना, 2n होगी या 2n से बड़ी होगी, तो ये चीजें छोटी, ये टर्म छोटा होता जाएगा, तो डिस्टेंस इसकी कम हो जाएगी। और x माइनस 1/2n, अब ये देखो 1/2n का डिस्टेंस x से, ये डिस्टेंस जो होगा वो x माइनस 1/n से बड़ी होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1/n। डायग्राम से दिख रहा है x से 1/2n की डिस्टेंस जो होगी वो x से 1/n की डिस्टेंस बड़ी होगी। तो यहां से आपको कंट्राडिक्शन मिल गया। क्यों कंट्राडिक्शन मिल गया, कोई बताएगा? क्या x माइनस 1/n x माइनस 1/n से बड़ी हो सकती है? क्या कंट्राडिक्शन हुआ यहां से? भाई आपके कंस्ट्रक्शन में आपने n क्या लिया? n लिया मैक्सिमम ऑफ ना, n लिया मैक्सिमम ऑफ 2n एंड 2n नॉट। तो ये जो x माइनस 1/n है, यहां से क्या गया? x माइनस 1/n इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1/n। यहां से देखो ये कंट्राडिक्शन आ गया, x माइनस 1/n इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1/2n। x से 1/n की दूरी जो है वो बड़ी होगी x से 1/2n की दूरी। अगर आप यानी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2n एंड नॉट लोगे तो ये जो चीज है ना, ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एज पर अवर कंस्ट्रक्शन 1/n जो है वो x से क्लोज है, तो इसकी डिस्टेंस जो होगी वो 1/2n से छोटी हो, बड़ी होगी। इसकी डिस्टेंस जो होगी x माइनस 1/n की, वो छोटी होनी चाहिए वो x माइनस 1/2n से। लेकिन यहाँ क्या मिल जा रहा है? x माइनस 1/n इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1/2n। ये बेसिकली यही चीज है जो हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया कि जैसे अगर मान लो कि 1 को कन्वर्ज कर रहा है, जैसे मान लो सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज, 1 से हाफ की डिस्टेंस जो होगी इसको मेजर करके आप ये बॉल बना दो इसका हाफ करके, अब आपको कोई n नॉट नहीं मिलेगा। बल्कि ये प्रूफ और आसान है जो यहाँ पे इस डायग्राम से दिख रहा है। लेकिन इस तरह भी आप एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि आप ये ले लोगे तो यहाँ पे आपको कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि एक्स आर्बिट्रेरी है, तो यहाँ से आप ये एज्यूम कर सकते हो कि बेसिकली ऐसा कोई एन नॉट नहीं मिलेगा। बेसिकली ऐसा कोई, अगर आप एन नॉट ऐसा कोई मिल भी गया तो ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा डेफिनेशन, ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा। इस यहाँ पे क्योंकि मैंने अब यहाँ पे x को 1 ले लिया तो x को 1/2, ऐसे आप बारी बारी करके चेक करोगे। या अब अच्छा एक चीज और, जैसे हमने यहाँ पे लिमिट में जो लिया ना, ये तो लिमिट ओपन इंटरवल 0-1 में कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। हम तो यहाँ 1, 1/2, 1/3 को चेक कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि 1 और 1/2 के बीच में कोई x हो यहाँ पे, तो ठीक उस x से सीक्वेंस के मेंबर, ये जो है ना, ये जो सीक्वेंस के मेंबर जो नियरेस्ट मेंबर है x से 1/2 और x से 1, इन दोनों को मेजर करके जो नियरेस्ट है वहां से कट बना दो उसका हाफ करके। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि उसके लिए कोई भी ऐसा एन नॉट नहीं मिलेगा, तो ये भी प्रूफ कर जाए, बट दैट शुड बी ट्रू। तो इसीलिए देखो कि कोई भी आप x, कोई भी रियल नंबर है x, कोई भी रियल नंबर ओपन इंटरवल 0-1 से, उससे हम क्या कर रहे हैं? 1/n जो सीक्वेंस के मेंबर उसकी दूरी देख रहे हैं, है ना, उसकी दूरी देखकर, और उस मिनिमम रेडियस का जितने भी है इसमें उनसे मिनिमम डिस्टेंस लेने के बाद अगर आप उस रेडियस का बॉल बनाओगे तो उसके अंदर कभी कोई ऐसा एक एन नॉट नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे मान लो कि मैं क्लेम कर रहा हूँ कि, अब मैं आपको और क्लियर कर दूं, जैसे 0 ये 1 है, ये मेरा पॉइंट है हाफ। अब मान लो ये रियल नंबर यहाँ पे है, जैसे ये मान लो रियल नंबर यहाँ पे है x, तो x से मैं हाफ की दूरी और x से 1 की दूरी, तो मैंने ले लिया x माइनस हाफ मॉड ऑफ x माइनस हाफ, हालांकि x और मॉड ऑफ x माइनस 1 ये ले लिया, जो उससे दो नियरेस्ट टू
आप कह सकते हो कि जो सीक्वेंस के मेंबर है 1 बाई n टाइप के, हालांकि 1 नहीं लेंगे, 1 तो इसमें नहीं है, इनफैक्ट 1 बाउंड्री से मान लो कि ये ले लो, तो आप ये जो डिस्टेंस मेजर करोगे और ये जो डिस्टेंस मेजर करोगे, इसका r इज इक्वल टू मिनिमम ले लो, r इज इक्वल टू मिनिमम ले लो। तो देखो इस बॉल, इसका हाफ करके या 1/3 करके अगर आप बॉल बनाओगे, तो इसके अंदर इस रेडियस के बॉल में, आई मीन x को सेंटर मान के इस रेडियस के बॉल में आपको क्या सीक्वेंस के मेंबर इस रेडियस बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस दिस r, क्या इसके लिए आप कोई n बता सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट? अब देखो xn की वैल्यू 1 ले लो, xn की वैल्यू, जो पहली n की वैल्यू 1 होगी तो 1 तो ऑब्वियसली नहीं है इस केस में, इस पे बात नहीं करेंगे। x2 की वैल्यू लो, x2 की वैल्यू, तो x2 यहाँ पे सीक्वेंस 1 बाई n, क्योंकि सीक्वेंस के मेंबर इससे बनाते हैं तो आप n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लो, 1 बाई n है ना, या 1 पे चाहो तो आप यहाँ क्लोज कर दो, अगर डाउट है तो 1 पे क्लोज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 पे तो तब इसके सारे, क्योंकि सीक्वेंस जो बनाते हैं वो इस स्पेस के ही लेते हैं, इसलिए 1 पे क्लोज कर दो। ओके, सो फॉर दैट you can see that we can never find some n naught, क्योंकि अगर n naught की वैल्यू जैसे आप लेते हो 10 लेते हो, तो n की वैल्यू 10 अगर लो तो एक्सटेंड 1/10 हुआ, 1/10 कहाँ इसके अंदर आएगा? 1/10 आपने जो ये सेंटर माना 1/10 तो 1/2 के लेफ्ट में हुआ, हम तो ये तो यहाँ नहीं होगा, 1/11 भी 1/2 के लेफ्ट में होगा, तो इस तरह से आप हर एक को डिस्कार्ड कर सकते हो। तो आप ये, इससे ये क्लेम हो गया कि ये ठीक है, हमने ये तो देखा था कि सीक्वेंस दिख रहा है कि इसकी ये सिर्फ 0 को कन्वर्ज करेगा, 0 स्पेस में मेंबर, लेकिन वही अगेन है ना कि इस चीज को मैं पहले रियल में भी बता चुका हूँ। क्या आप करोगे इस तरह कंस्ट्रक्शन करके आप हमेशा क्लेम कर सकते हो कि ऐसा कोई n नॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हर एक बॉल के लिए होना चाहिए ट्रू। एक्सचेंज जिस एक को कन्वर्ज करो उसको सेंटर मानकर आप जितने बॉल बनाओ सबके ट्रू होना चाहिए। तो डिस्कार्ड करने आप दिखा दो कम से कम हमेशा हम एक ऐसा बॉल बना सकते हैं जिसके लिए कोई नॉट नहीं मिलेगा, और यही वजह है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा किसी भी रियल नंबर को विद इन दिस ओपन इंटरवल 0-1। ठीक है, अब आते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी पर, इसके बाद डेंसनेस प्रॉपर्टी करेंगे, फिर कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे कंप्लीटनेस के। तो अब अगर यहाँ पे आप देखो तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था? अ मेट्रिक स्पेस, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? यस, a metric space XD is said to be complete if every Cauchy sequence in X converges to an element in X. A metric space is said to be complete if every Cauchy sequence in X converges to an element in X. ठीक है ना, तो जैसे अभी हमने आपको देखा ये ओपन इंटरवल 0-1 में दिस स्पेस इज नॉट कंप्लीट बाई X equal to open at 0 and closed at 1. If we take this with usual metric, then X is not complete. So to show that this space is not complete, you need to construct at least one Cauchy sequence which is not convergent. So clearly one can take this sequence xn equal to 1 by n, xn is equal to 1 by n, okay, which is not convergent in open interval 0 and closed at 1. Okay, so we can say that this space is not complete. This space X is not complete with respect to the usual metric because this one is a Cauchy sequence but which is not convergent. We have seen this one in earlier proof. Now there is another example 2.3.11 from the same book. Let D is equal to collection of all xy belonging to R2 such that x square plus y square is less than 1. Question is D complete?
बताएंगे आप लोग कुछ इसके बारे में? क्या ये स्पेस कंप्लीट है? यस एनीवन? कंप्लीट? अगर ये स्पेस कंप्लीट नहीं है, सो थिंक ऑफ अ सीक्वेंस हुज लिमिट इज नॉट इन दिस स्पेस। ये क्या सर्किल है ना, इंटीरियर ऑफ अ सर्किल, इंटीरियर ऑफ अ सर्किल है ना, इंटीरियर ऑफ अ सर्किल, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। Center 0 0 and radius 1. So just like earlier, we have if this space is not complete, so think of at least one Cauchy sequence whose limit is not in this space. So by that we can discard that the given space is not complete with respect to that the given metric. So can you do for this one? क्या वो भैया आप लोग सो गए, किसी की आवाज नहीं आ रही? तो देखो आप इसमें यस मारूफ, सिद्दीक, गुलाम, विवेक, ब्रजेश, यस सर। यस। मतलब क्लास में बोलते रहे, आप लोग तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे। यस सर। क्लास में तो तो देखो इसमें अब क्योंकि जो सीक्वेंस बनाते हैं ना वो इसी के मेंबर्स को लेके बनाओगे, तो आप कोई ऐसा सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करो, ये ऑर्डर पेयर टाइप के सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करो जिसका लिमिट इसके अंदर ना हो। तो इस बुक में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रखा है, ये सीक्वेंस लो 1 - 1 by n 0। सबसे पहले चेक करो कि ये जो सीक्वेंस आप ले रहे हो इसको ऐसे चाहे तो लिख लो, वेदर दिस मेंबर एवरी आई मीन फॉर एवरी xn for n equal to 1 to infinity, check whether every member comes from this space or not. Every member should be xy belonging to R2 such that x square plus y square. So you can see that 1 - 1 by n, 1 - 1 by n and 0. If you square this, then obviously it is going to be less than 1, है ना। 1 - 1 by n का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। देखो ये ऑलरेडी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, इन दोनों स्लॉट का स्क्वायर। हमें ऐसे एक्स वाई चाहिए ना जो ये कंडीशन फुलफिल करे। तो आप एक स्लॉट पे ये ले लिया 1 - 1 by n, वाई स्लॉट पे ये ले लिया 1 - 1 by n का स्क्वायर, 1 में से कोई चीज घटा के उसका स्क्वायर करोगे तो 1 से छोटी ही रहेगी। तो क्लियरली दिस वन एवरी मेंबर फॉर n equal to 1, फॉर n equal to 2, फॉर n equal to 1 ले लोगे तो 0 0 हो जाएगा। पहला मेंबर क्या मिलेगा 0 0। n equal to 2 लोगे तो वो ये 1 - 1 by 2, 0 होगा। तो ये पॉइंट भी इसके अंदर है, ये 0 0 हुआ, ये 1 - 1 by 2 0 हुआ। इस तरह आप देखोगे तो ये इसके सारे मेंबर्स 1 - 1 by 3 0, इन सब का स्क्वायर क्या है लेस देन इक्वल टू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। और ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगा, ये तो पढ़ा है ना R2 में बेसिकली सीक्वेंस का कन्वर्जेंस जो होता है वो ऑर्डर टाइप में देखते हैं। तो 1 - 1 by n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी ये किसको कन्वर्ज करेगा 0 को, तो ये 1 चला गया और ये 0, तो ये किसको कन्वर्ज करा 1 और 0 को। आई मीन 1 0 का आप सेंटर मान के आप चेक कर सकते हो जो भी बॉल बनाओगे उसके नेबरहुड में इन जनरल R2 में की बात करें तो। लेकिन प्रॉब्लम होगा कि मुझे इस डिस्क में देखना है, इस ओपन डिस्क में देखना है इसके अंदर ये लिमिट लाई करता है कि नहीं। तो 1 0 का अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे प्लस 0 का स्क्वायर करोगे तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 नहीं हुआ। 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 नहीं है। इसका मतलब जो लिमिट है वो इस D के अंदर नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू D। So we have constructed a Cauchy sequence whose limit is not in the disk D. So again we will say that this D is not complete. So answer is no. आगे समझ में ये D complete नहीं होगा। इसमें 1 0 ओपन इंटरवल भी तो होगा सर।
1 0। ओपन इंटरवल। अरे ये ओपन इंटरवल नहीं, ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट डिनोट कर रहा है। ये R2 में हो ना आप, R में नहीं हो। जी सर। और किसी कोई डाउट है? ये 1 0 पॉइंट है, ये देखो डिस्क है ना, ऐसे ये डिस्क लिया, सेंटर 0 0 और रेडियस 1। तो होगा क्या कि आप जैसे 0 0 ले लिया, फिर अगला पॉइंट जो लोगे वो आएगा 1 हाफ और 0। तो हाफ कहीं ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पे, तो कहीं हाफ 0 यहाँ आएगा नेक्स्ट पॉइंट। फिर ये 1/3 0, 1 - 1/3 0, तो 1 - 1/3 और छोटा होता जाएगा तो वो इधर आएगा। तो ये इस तरह ही सीक्वेंस चल रहा है सीक्वेंस। तो ये इसको इस बाउंड्री पॉइंट 1 0 को कन्वर्ज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो कन्वर्ज तो कर रहा है लेकिन इसके बाहर कन्वर्ज कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि दिस सीक्वेंस इज कॉशी बट नॉट कन्वर्जेंट। कॉशी आप चेक कर सकते हो, डी ऑफ xn माइनस xm चेक करके देख लो, वो तो ऑर्डर होता है ना, डी ऑफ xn माइनस xm, डी ऑफ xn xm इज इक्वल टू यूजुअल मेट्रिक है तो मॉड ऑफ xn माइनस xm आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है तो x वाले से x वाला स्लॉट घटाओगे, y वाले से y वाला स्लॉट घटाओगे। तो ये तो इन जनरल मैंने सीक्वेंस ले लिया, ये एक्चुअल में सीक्वेंस आपका ये है, xn इक्वल टू ये है 1 - 1/n, 0, ये आपका सीक्वेंस था। इसको लोगे तो ये इसी तरह ये हो जाएगा। तो आप 1 - 1/n में से 1 - 1/m घटा दो, तो जब घटाओगे इसको मॉड ऑफ ये होगा ना 1 - 1/n, 0 माइनस ये यूजुअल R2 में हो ना, तो R2 का यूजुअल क्या होता है, अंडर रूट, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R2 का यूजुअल आपको याद है क्या होता था? x को आप क्या मान लेते थे, x1 x2, और y को क्या एज्यूम कर लेते थे, y1 y2। तो d ऑफ xy यूजुअल मेट्रिक में क्या होता था, R2 में हो ना आप, R में नहीं हो। तो अंडर रूट दोनों के x स्लॉट का डिफरेंस x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये आप सीक्वेंस एज्यूम कर लो, xn इक्वल टू ये हो गया 1 - 1/n, 0, और दूसरा सीक्वेंस yn हो गया, ये हो गया 1 - 1/m, 0। तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया। अब ये फार्मूला लगा देना, वहां से आपको दिख जाएगा d ऑफ xy nm टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या जा रहा है, 0। तो वैसे कॉशी प्रूफ हो जाएगा, तो कॉशी आप खुद से कर लेना, आसान है। लेकिन ये कॉशी तो है, पर ये सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो इसके अंदर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि इनफैक्ट ये लिमिट जो है ये कन्वर्ज नहीं कर रही, सीक्वेंस जो है, बट दिस इज कॉशी। सो डिस्कार्ड करने के लिए आप एक कॉशी सीक्वेंस बना दो जिसकी लिमिट उसके अंदर नहीं है, तो कन्वर्ज आई मीन वो स्पेस कंप्लीट नहीं होगा, डिस्कार्ड करने के लिए एक बहुत है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कितने बजे से थी ये क्लास? 10:25। तो मैं मैटलैब की क्लास में भी यही पढ़ाऊंगा। मैं एंड करता हूँ ये क्लास क्योंकि ऑलरेडी टाइम ओवर हो गया है। लिंक सेंड कर दीजिएगा सर इसी ग्रुप पर। ठीक है, ठीक है। एक मिनट ये देख लूँ क्लास कितनी बजे तक हुई है। थर्ड क्लास में ये जो है थर्ड क्लास है 10:10 तक। हाँ 10:20 हो गया, 10 मिनट ज़्यादा हो गए। चलो ठीक है, फिर फिफ्थ क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।